Dear student, today we are going to learn the poem A Tiger in the Zoo. The poet of this poem is Leslie Norris, who is from Britain. Actually, he is a Welsh poet, very well known poet, and he is known for his animal love. In this poem, A Tiger in the Zoo, he want to express his own love for the tiger, because nowadays so many people are trying to imprison the animals for the pleasure of people. In so many zoos, people goes there and get entertained there. So, but for this entertainment, we are going to curtail the freedom of animals. This is not good. That is why he is trying to express the pathetic condition of the tiger in the zoo. Whereas his habitat is forest, jungle, he should be there in jungle, forest. There only he could be happy. But we are keeping him in the cage and just making him the piece for show. So this will be the tormentation of the tiger. So now let us see the explanation of the poem. This poem is split up in I think 4 or 5 stanzas. So let us see. He starts in his vivid stripes. Starts means to move quietly, धीरे से चलना. Vivid means clear. Stripes means जो उसके शरीर पे पट्टे होते हैं पीले और काले, that is called stripes. So he starts in his vivid stripes. तो शेर जो है, टाइगर जो है, अपने काले और पीले चमकदार पट्टों के साथ चलता है. The few steps of his cage on pads of velvet white. देखिए वो जो पैड मतलब इसके जो पंजे हैं, पंजे जो होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं. इट इज लाइक वेलवेट. दैट्स व्हाई हिज पैड्स और paws are called as pads. In his quiet rage. Rage means anger. Rage means anger. गुस्से. वो जो है जब केज में होता है तो few steps of his cage on pads of velvet white. जब पिंजरे में होता है, केज में होता है तो कैसा होता है? गुस्से में होता है. और वो गुस्से में उसके लिए केज में he could move only 4 or 5 steps. तो 4-5 कदम उधर चलता है और 4-5 कदम इधर चलता है अपने जो सॉफ्ट पंजे होते हैं उस पर. लेकिन एक्चुअली वो शांत दिखता है, लेकिन वो शांत होता नहीं है, वो बहुत गुस्से में होता है. Let us move to second stanza. He should be lurking inside. अब एक्चुअली कैसा होना चाहिए? How he should be? What is his real habitat? वो कहाँ पर रहेगा तो खुश रहेगा, सुखी रहेगा? तो he should be lurking inside. Lurking means lying or hiding behind. Hiding behind to catch the prey. घात लगा के बैठना अपनी शिकार को पकड़ने के लिए. That is called lurking. He should be lurking in shadow, sliding through the long grass. Sliding means moving slowly. Sliding means moving slowly. Near the water hole. Water hole means we call it as where the water is available. It may be river, pond, or any kind of resource of water. Where plump deer pass. Plump means fat. Deers are supposed to be very easy prey for the tigers. Plump means fat. मतलब he should be lurking in shadows. वो उसको कहाँ पर रहना चाहिए था? उसको तो जंगल में रहना चाहिए था.
जंगल में शिकार के पीछे घात लगाते हुए उसको घूमते रहना चाहिए था। कैसे? वो जो ग्रास होता है उसके अंदर से सरकते हुए, धीरे धीरे सरकते हुए वो शिकार का पीछा करना चाहिए था। जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर पानी होता है, वो पानी पीने के लिए उसके शिकार आते हैं। जैसे कि मोटे मोटे डियर जो होते हैं, मोटे मोटे प्लम्प जो डियर होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो अक्सर इसका शिकार जो है प्राकृतिक रूप में जो है टाइगर करते हैं। लेकिन ऐसा वो शेर के साथ नहीं हो रहा है, बिकॉज ही वॉज कन्फाइंड इन द केज। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड स्टैंजा। He should be gnarling around houses. So actually, tiger is the king. He should frighten others. He should not be afraid of others. But here the contrast thing is happening, and he should be snarling around houses. Snarling. Here it is not snarling, it is snarling. Snarling. Snarling means R will be silent here. Around houses at the jungle stage. Jungle stage means jungle's border. Bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. उसको कैसा होना चाहिए था? He should be snarling around the houses. वो जो जंगल के आसपास या जंगल के किनारे जो घर है, उस घरों के जो लोग रहते हैं उसको डराते हुए उसको दहाड़ना चाहिए था, घुराना चाहिए था। At the jungle stage, bearing his white fangs, his claws. Bearing means it is showing. Bearing means showing, दिखाना। उसने अपने fangs मतलब जो मोटे मोटे दांत होते हैं उसके, that is called fangs. और his claws मतलब जो नाखून भरे एकदम मजबूत पंजे होते हैं उसके, उसको कहा जाता है claws, terrorizing the village. उसने लोगों को अपने सफेद दांत और मजबूत पंजे दिखा के डराना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो खुद टाइगर ही क्या है, पिंजरे के अंदर बंद है। तो इस तरह से जो है टाइगर पर बहुत बड़ी मात्रा में अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए जो है टाइगर बहुत बड़ी मात्रा में मारे जा रहे हैं। Now tiger has become one of the endangered species, not only in India but all over the world. The same matter is there. Now let us move to third stanza. But he is locked in concrete cell. ऐसा नहीं हो रहा है, वो किसी को डरा नहीं रहा है, प्राकृतिक रूप में घूम नहीं रहा है। Actually he is not enjoying his freedom. He is confined in the cell only, concrete cell. But he is locked in the concrete cell. Concrete मतलब made by cement and concrete. That is called जो permanent केज होता है उसमें उसको बंद करके रखा गया है। Strength behind bars, उसकी जो शक्ति है उसको पूरी तरह से उस सेल में, उस केज में बंद करके रखा गया है। Stalking मतलब मूविंग स्लोली, क्वाइटली एंड धीरे से और चुपके से चलना। स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। एक्चुअली जो केज में जो भी कोई शेर होता है या टाइगर होता है तो ही इज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी, तो वो गुस्से में होता है, तो वो ही सच टाइप ऑफ एनिमल डोंट अटेंड द व्यूअर्स। उल्टा उसको जो देखने वाले आते हैं उसकी वजह से उनको क्या होती है, परेशानी होती है। He hears the last voice at night. यहाँ पर जो कि लास्ट का जामिन कहा है लेस्ली नॉरिस ने कि hears the last voice at night. वो जो है रात में जो पूरे व्यूअर चले जाते हैं तो उसके मन को शांति मिलती है, वो आराम से बैठता है। आखिर में रात को उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स मतलब पुलिस कार जो होती है जो गश्त लगाने के लिए, टू लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द जंगल और जू, दे मूव अराउंड।
दैट कार्स आर कॉल्ड एज पेट्रोलिंग कार। तो जो पेट्रोलिंग कार देर रात जब आखिर बार आती है तो उसकी वो आवाज़ सुनता है। और उसके बाद में एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। स्टेयर मतलब लुक एट समथिंग स्टेडी, एकदम एक तक देखते रहना। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मतलब ब्राइट आइज, क्योंकि शेर की आंखें जो होती है बड़ी चमकदार होती है। एट द ब्रिलियंट स्टार, एट द ब्रिलियंट, देखिए ब्रिलियंट ब्रिलियंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो उसके भी जो वो अपनी जो उसके जो आंखें हैं अपने चमकदार आंखों से जो तारे होते हैं दूर आसमान में उसके तरफ देखता रहता है। तो एक्चुअली हियर लेस्ली नॉरिस वांट टू से that you may also be brilliant. So stars are supposed to be free, isn't it? They are free. So they could not be enslaved by anyone. So that's why he also longed to be the free. यहाँ पर टाइगर की भी इच्छा है कि मैं भी उस तारे की तरह क्या बन जाऊं, फ्री हो जाऊं, मेरे पर किस तरह का बंधन या मैं इस केस से या इस कंक्रीट सेल से छूट जाऊं और मुझे मेरी जो जंगल वाला जीवन है फिर से वापस मिल जाए, ताकि दैट सो दैट ही कुड लिव हिज लाइफ विथ हिज ऑल इंस्टिंक्ट, है ना। जो अपनी इंस्टिंक्ट होती है, स्वभाव होता है, उसी के अनुसार आदमी जीवन जीना चाहता है। हमें अगर जंगल में छोड़ दिया जाए वी वुड नॉट बी हैप्पी, है ना। लेकिन अगर शेर को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उसको कुछ भी खिलाया जाए, then he would never be happy. He would enjoy his freedom, everything, life in real sense, whenever he will be sent to jungle. Here we end the meaning of the translation of this poem, and now we will see the poetic devices used in this poetic devices. पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं वो फिगर ऑफ स्पीचेस एक्चुअली यूज्ड इन द पोएम टू मेक द पोएम मोर डेकोरेटिव एंड इफेक्टिव. So you know, as in previous poem also we have seen the different kinds of figures of speech, poetic devices. Now first of all we see here the rhyming scheme. What is rhyming scheme? Rhyming scheme में आप तो देखिए cage, quiet, anger, ये strike, cage, quiet, anger, है ना. तो स्ट्राइक को स्ट्राइक्स यस है ना, तो इसको ए देंगे, बाद में केज ज को बी देंगे, दूसरा ज में जी ई है, स्ट्राइक्स, क्वाइट एंड एंगर. रेज है ना. इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी. दूसरे का भी वैसा ही है, जैसे कि शैडो ओ ए बी एस एस बी सी, ए बी सी. तो इसका ओवरऑल जो पूरे स्टांजा से उसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी, ए बी सी. All these stanzas are divided into 4 lines. Now poetic devices. Poetic devices, here you can say he. We generally use he for living being, but here it is okay. It is living being, but not for animals. Human being. Here he is used for tiger. Therefore it is straight way personification. ये क्या हो गया है,
उसको जो है टाइगर को ह्यूमन बीइंग की तरह दर्शाया गया है, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये स्टार्क्स, हिल्स, स्ट्राइप्स, यहाँ पर यस साउंड जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है, रिपीट होता है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए जो यस जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंस है। यहाँ पर दूसरा कौन सा है, कॉन्सोनेंस। अगर वॉवेल रिपीट होता है प्रोमिनेंटली तो उसको क्या बोलते हैं, एसोनेंस बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर देखिए पहले स्टांजा से दूसरे स्टांजा जो आया है यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं लगाया है, सो दिस सिंगल लाइन इज स्प्लिट अप इन 2 lines without any punctuation, that's why this is called as enjambment, enjambment, है ना। तो उसके बाद में ये है कि ये देखिए यहाँ पर भी व्हाइट है और यहाँ पर भी व्हाइट है, तो ये जब वर्ड्स रिपीट होते हैं, व्हेनेवर द वर्ड गेट रिपीटेड देन इट इज कॉल्ड एज रिपीटेशन। रिपीटेशन वो क्या है, रिपीटेशन है। लेकिन जब साउंड रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर है ही शुड बी लर्निंग इनसाइड, यहाँ पर यस यस साउंड जो रिपीट हुआ है इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो यहाँ पर जो है इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम and whatever I have given you homework, you should solve it and send it to my Google classroom. Thank you very much.